Good morning, bachcho. I'm CA Roshan Kumar, and we are doing indices, right? Indices we have already done with theoretical aspects, and thoroughly we have completed with illustrations. Many illustrations I have done, and believe me, if you are doing all those illustrations along with the theoretical aspects which I have solved, this chapter is going to be very easy for you. This chapter is going to be very easy for you. Okay, beta. So today what we'll do, we'll start with exercise. We'll start with क्या exercise. Exercise. Let me tell you, I have been doing all the problem from the exercise, okay, right from ratios, proportions, and now indices. So nothing to worry. I will explain. First time I'll explain all the problems, but you have to keep practicing. You have to keep practicing yourself. You have to solve all the problems once again, if possible 2 to 3 times. Then that will be very easy for you in the examinations. Okay, and you should do it. Chalo beta. So now what we'll do, we'll study on fast track mode. ठीक है. So some 15 minute 10 questions. 15 minute 10 questions we'll do very thoroughly. Okay, so be alert. चलिए. So exercise 1C page number 1.21. Beta, these questions are from your study material itself. Okay, study material paper 3 business mathematics, study material paper 3, study material paper 3. Okay, all of you please turn the page 1.21. चलिए बेटा, इसमें पहला सवाल आपको पूछा गया है कि 4x का पावर 1/4 is expressed as 4x to the power 1/4 is expressed as. कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो मैंने बोला था कि 4 तो चलो ठीक है, एंड यदि कहीं पे माइनस आ जाता है इसका मतलब वो क्या होता है कि वो डिवीजन के टर्म में है. x to the power 1/4 कहने का मतलब 4 डिवाइड बाई x to the power 1/4. और मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया, सिंस इफ़ a to the power -1 है तो 1/a हम लिख सकते हैं. ओके, सो देख लो कहीं पे ऑप्शन है ना सर? ऑप्शन नंबर सी. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ. Question number 2, what you have? The value of 8 to the power 1/3. Okay, value of 8 to the power. Now simply you tell me how you can write 8. 2 to the 4 to the 6, 2 to the 4 to the 8. Okay, 2 to the 4 to the 8 and whole to the power 1/3. So 1 2 3, there are 3 2, so you can write 2q to the power 1/3, and hence 2 to the power 3 multiplied by 1/3. This is gone. So finally you will have what? 2. Is there any option? Yes sir, C number is the option. What I have done here, if a to the power m whole to the power n, then you can write a to the power mn. Beta, whatever formula I use, I just write down so that you will remember it and you will be able to correlate the formula along with the problems. So you also do first times like this only. 2 we have done. 3 number they are asking you the value of, what they are asking, value of 2 multiplied by 32 to the power 1/5. This is more or less same kind of problem. 2 multiplied by 32, how you can write? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 34, right? And whole to the power 5. Now you must tell me 2 to the power how much you can write? 1 2 3 4 5, and this 1/5 is already there. 1/5 is means here also I have done same thing. a to the power यदि m है, whole to the power n है, a to the power mn कर सकते हैं. right sir. 2 multiplied by 2, देखो this is gone. So 2 to the 4. Is there any option? Third number, is there any option? Yes sir.
सी नंबर इज द ऑप्शन 3। 4 में बताइए। 4 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 32 का पावर 1/5। 4 मल्टीप्लाइड बाय 32, 4 मल्टीप्लाइड बाय 32 का पावर 1/4। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1/5। सर ये सेम, हाँ बिल्कुल सेम है। सो हेयर 4 multiplied by 2 to the power 5 multiplied by 1/5, this is gone. So 4 multiplied by 2 equal to 8. Actually I could have left it for your exercise, like homework. Anyway, here what we have done, a to the power m and n. सो ए का पावर एम एन, जितना बार जितना फार्मूला मैं यूज़ करूँगा मैं लिखूँगा। ओके, सो 15 मिनट 10 सवाल, मुझे लगता है उससे पहले हो जाएगा। 5 नंबर, द वैल्यू ऑफ 8 बाय 27 का पावर 1/3। 8 बाय 27 का पावर 1/3। ऊपर बेलो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, होल टू द पावर कितना है बेटा 1/3। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या है 2q 3q होल टू द पावर 1/3। सो कैन यू टेल मी, कैन आई राइट 2/3 का पावर q का पावर 1/3? this is gone. So 2/3, actually what I have used here, same, a to the power m whole to the power n, a to the power m by n, same thing I have used, right sir, 2/3. now tell me, is there any option 2/3? 5 number, yes sir, a number is the option 5। 6 नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 256 to the power 1/8। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, 2 डिवाइड बाय 256 to the power 1/8। यहाँ पे दिस इज माइनस, नो माइनस, ओके। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ क्या किया है कि a का पावर -1 तो 1/a, अंडरस्टूड, यस सर। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 120 दूना 256, 8 दूना 16 12 दूना 24 25, ठीक है। सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्यों लिखा, मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 356 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय पावर क्या है 1/8। ओके, सो 2 डिवाइड बाय 2 का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। हाउ, देर आर 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8, so this and this gone। 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 1। 6 नंबर का आंसर होगा ए। एप्रिसिएटिंग बॉयज, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव 2 to the power 1/2 multiplied by 4 to the power 3/4, 4 to the power 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपली आप करके बताओ मुझे क्या होगा। ओके सर, तो यहाँ तो 2 to the power 1/2, नो इश्यू। ओके, हेयर 2 multiplied by 2 to the power 3/4, ओके। 2 to the power 1/2 multiplied by 2 square multiplied by 3/4,
तो यहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं, 2 दूना 4। कहने का मतलब 2 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर क्यूब, होल टू द पावर क्यूब। एंड यहाँ पे यदि मैं होल टू द पावर 1 कर दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे मैंने अप्लाई क्या किया है, राइट चलिए, तो यहाँ पे देखो बेस इज सेम, बेस इज सेम। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, 2 टू द पावर 1/2 इज बेस हेयर, 2 टू द पावर 1/2 इज बेस हेयर, पावर 1, पावर 3. So what you can write here? Sir, I can write 2 to the power 1/2 1 plus 2 to the power 1/2 का पावर क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा मैंने अप्लाई किया, a का पावर m टोटल पावर n, तो a का पावर mn, राइट राइट सर। 2 to the power 1/2 होल टू द पावर 3 + 1 कितना 4, ओके ब्रैकेट हटाओ, 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, a का पावर, यहाँ पे भी मैंने यही यूज़ किया ना, राइट मैंने यही यूज़ किया। सो दोबारा फार्मूला क्यों लिखना, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4। अच्छा, अब आपका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन है, ए नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में तो नहीं आया, होल नंबर आ गया। दूसरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बी कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सी में कह रहा है नेगेटिव इंटीजर ना, डी में कह रहा है नन ऑफ अबव ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो बी वुड बी द आंसर, राइट राइट सर। चलो बेटा 5 मिनट में अगला 3 सवाल। सो 7 हो गया, नाउ 8 वी आर डूइंग नंबर 8। ओके 8 में यू हैव 81 x का पावर 4 होल टू द पावर 1/4 डिवाइड बाय y का पावर -8। सो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 एंड मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 4 है ही, होल टू द पावर 1/4 है ही, डिवाइड बाय y का पावर -8 एंड होल टू द पावर 1/4 है ही। सो 1 2 3 4 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 x का पावर 4 होल टू द पावर 1/4 एंड यहाँ y -8 होल टू द पावर 1/4। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट से आउट करूँगा इसको, तो 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 x 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 डिवाइड बाय y -8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। नाउ काटाकाटी होगा, यहाँ पे देख लो 4 2 4 गियो, 4 2 4 गियो, 4 2 जा 8। और मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, यदि a का पावर m है एन होल टू द पावर n है, तो a का पावर mn, ये फॉर्मूला का यूज़ हुआ है। ओके सर, सो 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 1 डिवाइड बाय y का पावर -2। ओके, व्हाट दे आर आस्किंग एक्चुअली, तो क्या होगा यहाँ पे 3x एन y ऊपर जाएगा तो y के पावर y²। क्या a का पावर यदि -1 है तो ये a/1/a होगा, तो यहाँ पे यदि इसका पावर -1 है तो ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा, दैट्स वाई 3xy²। डू यू हैव एनी ऑप्शन? ऑप्शन 1 इज xy², 3 नहीं है तो गियो, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 x² नहीं,
Action 3, 9xy square. No. So obviously D. D you have none of above. Beta, study material you should have. If you don't have a study material, please go on the ICI website and download from there. It's free of cost. Okay. So either soft copy or physical copy, any one of you should have. ठीक है? Because I am doing all problem from study material itself, concept, illustrations and exercise, everything. The reason being, no matter whatever I will give you from outside the syllabus, still the same questions will be picked from your study material. Okay, so don't go here and there, jump here and there and solve all the irrelevant things without solving your study material. First priority is your study material, so do first study material itself. Okay sir, you have it now. You have 3 more minutes, right? Okay, 9 number 9 में क्या पूछा आपको? 9 में पूछा x का पावर a है माइनस b है मल्टीप्लाइड बाय x का पावर b है माइनस c है मल्टीप्लाइड बाय x का पावर c है माइनस a है. तो इसको मैं सिंगल टर्म में तोड़ूंगा, x का पावर a. अब यहाँ पे प्लस x का पावर b, तो मल्टीप्लाइड बाय x का पावर माइनस b मल्टीप्लाइड बाय x का पावर b मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये x है ना, यहाँ पे x का पावर माइनस c, यहाँ पे मल्टीप्लाई x का पावर कितना बेटा? x का पावर ऑब्वियसली c मल्टीप्लाइड बाय x का पावर कितना होगा? माइनस a. व्हाट आई हैव यूज्ड एक्चुअली, यदि कहीं पे a का पावर m है मल्टीप्लाइड बाय a का पावर n है तो a का पावर m प्लस n होता है. ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है. ठीक है. नाउ यू टेल मी, नाउ यू गोना टेल मी बेबी, क्या x का पावर a एंड x का पावर b है तो ऑब्वियस ही बात है ये x का b रहा होगा. x का पावर b एंड x का पावर c है तो ऑब्वियस ही बात है ये c रहा होगा. x का पावर c तो ऑब्वियस ही बात है ये x का पावर a रहा होगा. राइट. यहाँ पे क्या हुआ है? a का पावर यदि -1 है तो इसको क्या लिखा जाता था? a का पावर 1 का पावर a. राइट. तो इस फार्मूला का यूज़ किया. 2 फार्मूला मैंने देख लिए. अब बताओ ऊपर नीचा सेम है क्या? x का पावर a, x का पावर a. राइट. राइट सर. यहाँ पे देखो x का पावर b, x का पावर b, यहाँ पे x का पावर c, x का पावर c. तो कहने का मतलब बचा क्या? बचा साहब एक, और एक क्या है? b. डन. चलो one more, you have 2 more minutes. Okay, let's see if we can meet. So the value of okay, option I did not give. No, I have given no. b. Yeah. So value of, चलो 10 नंबर, value of 2p square q की डिवाइड बाई 3xy होल टू द पावर 0. हो माई गॉड. तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो बेटा इसका वैल्यू होगा 1. कैसे? सिंस a का पावर यदि 0 है तो o इक्वल टू 1 मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया. मान लो ये पूरा बेस है a एंड इसका पावर 0 है तो ये इक्वल टू होगा 1, चाहे जितना भी कर लो आप. तो 10 का ऑप्शन नंबर सी. यस, वी हैव मेट 15 minutes 10 questions. We have done with 15 minutes 10 questions. 10 पे ख़त्म करिए या एक कर देते हैं, 11 भी कर देते हैं. देखते हैं इसी में हो जाएगा क्या. 3 का पावर क्यूब होल टू द पावर a स्क्वायर, 4 का पावर 2 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब होल टू द पावर a स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब, 4 क्यूब होल टू द पावर a स्क्वायर, 5 स्क्वायर होल टू द पावर 3. Okay, now 3 and 3 to the 6 multiplied by 4
2 3 जा 6 multiplied by 5 3 2 जा 6 divide by 3 3 2 जा 6 multiplied by 4 3 2 जा 6 multiplied by 5 3 2 जा 5 2 जा 6। यहाँ पे मैंने किया क्या है, कुछ नहीं सर जी, a का पावर m है, होल टू द पावर n है, a का पावर m n, राइट। अब इसको करो गोल्ड में, तो ये इक्वल टू 1, understood, yes sir। So we have done with 11 problems. Now next class we'll do the remaining, okay। By the time what you can do, you please go through the theoretical aspects if you have already come from there, so solve these 11 questions once again, okay, revise it and revise your formula also, all the 4 laws and basic understanding what I gave, 4 of them। So both the things you can revise so that you will be able to appreciate the problem going forward, okay। Chalo, have a good day, take care and bye beta।